Hi everyone. So I am very happy today. I don't think I need to introduce the person who is sitting in front of me, Dr. Aman Tilak, an Amazonian. He has guided a lot of undergraduate students through his YouTube channel. But for me, a much bigger thing is that for me, he's a younger brother and he has scored 455 rank in INI-CT exam today. The result has been announced today. For a lot of you, 455 rank could not be a very big deal. But for me, it is a very big deal. Aman ranked 33 AIMS during the undergraduation, a role model for everybody. But I can tell you that he has not studied very well during the MBBS because he has a doubt that whether he wants to pursue post graduation or not. But something happened in the mid year internship when he called and he said कि नहीं सर मैंने डिसाइड करा है कि मुझे पीजी करनी है और इसी साल करनी है बिना ड्रॉप करे. So you tell me, I have 4 months, around 4 months with me. I have not studied very well. Now tell me, can I do this? I said, obviously, there is no doubt about it. You can do this, but provided you stop thinking about it and you start working on it and you work on this particular model. And I'm very happy that those efforts has brought fruits today. 455 for me is a good rank, is not a good rank, and that totally depends on an individual student. But 4 months of the studies can give you this rank. Normally nowadays I don't make videos of the student who have got good ranks. I don't interview. One of the biggest reason is that I have found out that those people who have got a rank in top 10, top 50, they are reading for a pretty long time. They are reading from first year, second year, third year MBBS, and the contribution that I have in their success is very little. I mean, we do contribute little bit, but the amount of contribution I don't think much. But yes, in a 4 month, if a student is able to do that, obviously there is a hard work, a lot of hard work. We're gonna talk about it, but it's you feel lot of satisfaction, lot of pride in saying that yes, my younger brother, my student who has followed me, what I have told him, is able to reach to this particular part. So today we're gonna hear from Aman that if you have not prepared well and you have a little bit time, let's say 4 months, like a lot of students are messaging me कि sir, I did not get a good rank and I am feeling depressed, devastated at this stage. You have exactly 4 months, or I will say 3.5 months for your NEET PG exam. Can you tilt the table? That is what we're gonna try to talk in this video. So, Aman, first of all, I do not know, being an Amazonian, should I congratulate you at 455 rank or not? I do not know that how the Amazonian takes a 455 rank. So, but still, I would like to say congratulations. Thank you. And over to you. That what is your take on this and how you want to tell it to the students? So it was back in July mid इसी साल का, पिछले साल नहीं, इसी साल का 2022 में, when I thought of preparing for PG entrance examination. When I say this, I mean कि भाई जब से मेरी internship start हुई है from January, I have not opened a single page of a book. I've been a YouTuber throughout my MBBS and मैं बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहता हूँ. बट क्रैकिंग पीजी वाज नॉट समथिंग जिसके लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड था. मेरा ऐसा था कि देख लेंगे, हो जाएगा, बाद में देखेंगे आराम से, कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं लेना है. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था फॉर द पास्ट 6 मंथ्स. सो इट वाज फाइनल ईयर एग्जाम्स मेरे खत्म हुए, उसके बाद फिर 6 महीना स्ट्रेट ये मैंने सारा इंटर्नशिप परस्यू कर रहा था, यूट्यूब अपना चैनल ग्रो कर रहा था एंड सारी और सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी चीजों में मैं लगा हुआ था. राइट नाउ इन द मिड ऑफ जुलाई मेरा जो है वो हम लोग की 3 मंथ्स की विलेज पोस्टिंग हो रही थी. तो मैं उस वक्त विलेज में था, है ना, मेरी लास्ट मंथ ऑफ माई विलेज पोस्टिंग थी वो. एंड उस वक्त मैंने सोचा कि एक बार ट्राई दे सकते हैं. 3 महीना बचा है, 3 साढ़े 3 महीना बचा है, क्या जाता है मतलब अपना फुल एक बार ट्राई देने में. नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई रिग्रेट, मतलब कोई बहुत रिग्रेट भी नहीं हुआ, क्योंकि आप 3 महीना पढ़ रहे हो, कोई ऐसा तो है नहीं 2 साल 3 साल की प्रिपरेशन है. यूजी में बात अलग है, मेरी 33rd रैंक आई है ऑल इंडिया in the AIMS entrance examination in 2017. उसके लिए 2 years it was like very hard work, मतलब उसमें कुछ नहीं किया था. यहाँ पर it was बहुत डिफरेंस था. यहाँ पर जहाँ मैं वहाँ 2 साल पढ़ रहा था, यहाँ पर मैंने 3 साढ़े 3 महीना मुश्किल से पढ़ा है.
नाउ सर जहां तक बात करें कॉन्ग्रेचुलेशन की, मैं बहुत क्लियर बोलूंगा फॉर एम्सोनियंस हम लोग का टॉप 10 में 3 से 4 लोग हर साल आ जाते हैं। जब एम्स पीजी होता था, अभी आईएनएससीटी होता है, तो सर टॉप 100 के बाहर तो हम लोग के ग्रुप पे भी कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं आएगा। बट दैट इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव एंड इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट करता है। अब जैसे मुझे अपना क्लियर है कि भाई मुझे जो 100 साइड क्लिनिकल ब्रांचेस जैसे मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ओबीजी, सर्जरी, ये सारे हैं, ऑर्थो, ये सब मेरे को चाहिए ही नहीं। मतलब मैं बहुत क्लियर हूँ, आई वांट अ रिलैक्स लाइफ एंड आई वांट टाइम फॉर माय सेल्फ एंड आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। तो दिस इज वेरी सब्जेक्टिव कि भाई देखो रैंक वो अच्छी जिसपे आपको अपनी एक ब्रांच मिल जाए, खत्म का, उससे फर्क नहीं पड़ता आपकी 1000 रैंक है, 500 रैंक है, 200 रैंक है, 10 रैंक है। अमन ऐसे तो हम बात करते रहेंगे। करेक्ट। इस वीडियो में बात करते हैं कि तुमने 3.5 महीने में क्या किया, ठीक, कैसे किया, ठीक, और सबसे बड़ी बात वो मोटिवेशन कैसे आया कि जो बच्चा ज्यादा किताब बुक्स नहीं पढ़ता था, सडनली उसने पढ़ना शुरू किया, क्या क्या चीजें ध्यान में रखी, किन किन पॉइंट्स पर फोकस किया। सी मेरा पर्पस इस वीडियो का बड़ा क्लियर है। मेरा पर्पस अमन को कंग्रेचुलेट करना नहीं है, मेरा पर्पस 4 फैकल्टीज को थैंक यू बोलना नहीं है। मेरा पर्पस ये है जो स्टूडेंट्स आज अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है और वो सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ खत्म हो गई, बहुत गंदा परफॉर्म किया है, उनके पास 3.5-4 महीने हैं, क्या वो नीट क्रैक कर सकते हैं? ब्रॉडली दिस इज माय सिंगल पॉइंट एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो देखो नीट पीजी तो नहीं मैंने दिया है, नहीं मैं दूंगा अब, बिकॉज मेरा हो गया सिलेक्शन इसमें। बट मैं ये जरूर बता सकता हूँ आईएनएससीटी जैसे मैंने दिया है, इसके लिए मैंने क्या पढ़ा और क्या एग्जैक्टली किया, बिल्कुल स्पेसिफिक मैं चीजें बात करूंगा, आपका भी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बिकॉज सब लोग आई बिलीव पढ़ भी रहे होंगे। सो बेसिकली अब देखो जुलाई मिड में जैसे मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैं खुद एक यूट्यूबर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सारे पीजी जो यूट्यूबर्स हैं जो एम्स से थे, मैं नाम लूंगा डॉक्टर आदित्य गुप्ता, देन डॉक्टर ऋषभ जैन रेडियो में है, उसके बाद और भी कुछ कुछ चैनल्स है ना जो कि जिनकी आईएनआईसीटी में रैंक आई स्पेसिफिकली। फॉर मी इट वाज ऑलवेज कि मेरे को एम्स दिल्ली में ही सीट चाहिए, पीजी में जब यूजी में है ऑलरेडी था। तो एक अच्छी चीज ये होती है कि मेरे अंदर एक थॉट ब्लॉक नहीं था कि भाई कोई भी थॉट ब्लॉक नहीं था कि आप अगर 3 महीना पढ़ के भी कोई सीट नहीं उठा सकते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग पेरिफेरल मेडिकल कॉलेज के सोचते नहीं है एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग। मैं अभी एक डॉक्टर मोहसिन ने उनका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने बताया कि भाई उनको एक उनके सीनियर ने बोला कि आप एम्स का 1000 रुपए का फॉर्म अपना वो वेस्ट कर पेरिफेरल मेडिकल कॉलेज। तो ये थॉट ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई मतलब कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन से कॉलेज से हो, आपको वो 3 घंटे में आपने वो सवाल सही किए तो आपका सिलेक्शन हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा। और कोई नहीं पूछेगा आपसे कि यार ये क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन, ये सर बोलते हैं। थॉट ब्लॉक बहुत बड़ी चीज है, ये थॉट ब्लॉक अपने दिमाग से कंप्लीटली निकालना है। आपकी पुरानी रैंक क्या है, आपने कैसा किया, ये नहीं मैटर करेगा। ये मैटर करेगा कि आज से आप अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हो और ये आगे के 3.5 महीने कैसे यूटिलाइज करना चाहते हो। क्या बोल रहे थे चार? सर एक चीज बोलते हैं, अपने वीडियोस में भी बोला है इन्होंने और सर से मेरी बात हुई की एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 ऑप्शन थे आपके पास एमसीक्यू में, आपसे कोई नहीं पूछेगा आपने बी ऑप्शन क्यों चूज किया। हो सकता है आपने तुक्का लगाया, हो सकता है आपने उसके लिए पीछे 3 साल पढ़ा, बट इफ ऑप्शन बी आपने मारा है और वो सही है तो यू विल बी स्कोरिंग +1, नहीं तो यू विल बी गेटिंग -1 बाय द क्लियर, नो वन इज गोना आस्क यू। वो आप जैसे जैसे रटो उसे समझो। If the answer is B, if you have marked the answer as B, answer should be B. खत्म बात, सिंपल। तो अब यहाँ पर 2 चीजें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर आईएनआईसीटी। पहला जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि सारे आप यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे वो बोला भी गया है, आई एम नॉट श्योर उस पर कितना लोग वो फोकस करते हैं, लेकिन मुझे तो फिर सारे मेरे सीनियर सबने वो चीज इतनी बोल दी थी और सर ने भी इतना फोकस किया उस पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, आई कांट स्ट्रेस दिस मोर। इस बार भी पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जहां पर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे रिपीट होके आए, राइट। तो आईएनआईसीटी नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए सबसे बड़ी चीज प्रीवियस ईयर पेपर ही होते हैं। सर मैं आईआईटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने और कोई एग्जाम नहीं दिया है, नहीं मैं ये देने एक बच्चों के लिए है कि जब हम ये वाली बात बोलते हैं तो हमें दिल से बोलते हैं कि बच्चे कोई भी कॉम्पिटिटिव, मेडिकल नहीं, नॉन मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, किसी भी एग्जाम के लिए सबसे पहली चीज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, जस्ट एमसीक्यूज नहीं,
प्रीवियस ईयर टॉपिक्स होते हैं। बिल्कुल प्रीवियस ईयर टॉपिक्स इज द प्राइमरी की दैट यू हैव टू फोकस ऑन। दूसरी चीज, आपको अगर क्रैक करना है आई सीटी, तो सिंपल सी चीज है, अगर आपने ऐसे पढ़ा है, थोड़ा प्रमोशन भी कर देता हूँ। हाँ, हमारी बुक आती है टू दी पॉइंट, जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज के लिए है। हाँ, तो बहुत अच्छी बुक है, काम आएगी, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे पढ़ा है कि लास्ट के 10 दिन 15 दिन में पूरा जितना भी पढ़ा उसे रिवाइज कर लो, वर्सेस एक बंदा जो 2 साल 3 साल से बड़े बड़े वीडियोस देख रहा है, 200 घंटे के, 250 घंटे के, 150 घंटे के, तो आप बहुत बेटर पोजीशन पर रहोगे, क्योंकि वहां पर आपको स्पीड में याद आनी चाहिए कि ये ऑप्शन है ना। तो मैं इवन एग्जाम के सुबह वाले दिन, मुझे पता था प्रीवियस ईयर इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम था हम लोग का 9 से 12, मैं सुबह 6 बजे 7 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने स्टार मार्क किए हुए थे, ये मेरे को रिवाइज करने, उसमें रटना है, कुछ दिमाग में है नहीं, है ना। तो मैं वो रट के गया, तो उसमें आए थे 3-4 क्वेश्चन, उसमें से भी आ गए थे बेसिकली। ठीक है, आई कांट स्ट्रेस दिस मोर। दूसरा चीज मैंने आपको बता दिया कि भाई कि आपको लास्ट के 10 डेज 15 डेज में अपना ऐसे पढ़ना है कि वो पूरा रिवाइज कर सको, उसमें आपको हर तो ये कैसे किया? पहली बात, तुम्हारे पास सिर्फ 3.5 महीने थे, हाँ, सब्जेक्ट थे 19। सर 3.5 महीने कहा जाए तो ऐसा है कि अगर आप 3 महीने 3-4 सब्जेक्ट के वीडियोस देखने चले जाओ ना, वो भी कम पड़ेंगे। तो क्या किया तुमने? तो मेरे लिए काफी क्लियर था कि भाई मैं पूरे वीडियोस या फिर पूरे नोट्स में पढ़ ही नहीं सकता, मतलब क्वेश्चन ही नहीं, लोगों का थोड़ा डिलेमा। और अमन, इस बात पे कितना विश्वास करें लोग यार, एम्स रैंक 33 है, अंडर ग्रेजुएशन, ये तो बोलने वाली बातें हैं कि बेसिक नॉलेज तो बहुत स्ट्रांग होगी, एम्स से एमबीबीएस किया है और थ्रू आउट टॉपर रहा है, तो कि मैंने 3.5 महीने पढ़ाई की है, ये फालतू की बात है। इसके बारे में क्या व्हाट व्हाट यू वांट टू से? पहली चीज है सर, फॉर मी सर, एम्स यूजी में टॉप करना वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट वाज गेटिंग इनटू एम्स। फिर उसके बाद एमबीबीएस के दौरान मैं पास हुआ हूँ और मीडियोकर स्टूडेंट रहा हूँ। मेरी, मैं अपने अगर 100 बैच है उसमें 45 रैंक पे रहता हूँ, जो कि मतलब एक मीडियोक्रिटी है, कोई बहुत वैसी बात नहीं है। तो आई कुड से ओवर हियर पर कि भाई सर, मैं जब बोल रहा हूँ कि भाई मैंने नहीं पढ़ा था, तो नहीं पढ़ा था, ये मत सोचो कि भाई मैं एम्स से था, ठीक है अच्छा पढ़ाते हैं जो भी है सब, बट मैंने नहीं पढ़ा था भाई पूरा इंटर्नशिप में 6 महीना। तो क्या किया 3.5 महीने? सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बात करते हैं, ठीक है, क्या किया? ठीक। सर इससे पहले सर मैं बस एक और चीज बता दूं कि एक और चीज सर ने बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब वीडियोस पे भी आप देखोगे तो मिल जाएगा आपको। फर्स्ट सेकंड ईयर सब्जेक्ट आर द की फॉर क्रैकिंग आईआईसीटी, काफी डुएबल भी है। फर्स्ट सेकंड ईयर में आप पढ़ते भी होगे अच्छे से, उस वक्त जब कोई भी बच्चा घुसता है एमबीबीएस में, वो ज्यादा अच्छे से पढ़ता है एज कम्पेयर टू फाइनल ईयर में। कितना ज्यादा कोर्स हो जाता है, आप कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल हैरिसन है, आप उसको 2 साल लग जाएगा वो केवल वो पढ़ने में, तो आपको फर्स्ट सेकंड ईयर काफी आप पढ़े होते हो, मतलब इसमें कोई क्वेश्चन किसी के लिए नहीं है। आप अगर पास की फर्स्ट सेकंड ईयर हमने पढ़ा होगा, है ना। जैसे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, मैंने नहीं पढ़ी थी, रॉबिन मैंने छुई नहीं, मैं काफी क्लियरली बोल रहा हूँ। मेरे सारे एम्स वाले बच्चे, मेरे सारे बैचमेट्स में रॉबिन्स अंडरलाइन कर करके पढ़ते थे, मैंने नहीं पढ़ा उसे। ठीक है, अनंत नारायण जो थी माइक्रो के लिए, वो नहीं पढ़ी। एम्स में तो एनाटॉमी में ग्रेस काफी लोग पढ़ा क्या? हाँ, ठीक है सर, स्पेसिफिकली क्या नहीं पढ़ा समझ आ गया है, हम बात करते हैं पढ़ा। सब्जेक्ट वाइज आ जाते हैं, है ना। एनाटॉमी में मैंने जो है अश्विनी सर के जो एलएमआरपी के वीडियोस थे, पहली चीज वो देख ली मैंने। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे और प्रीवियस ईयर टॉपिक देखे। न्यूरो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सर ने बताया, न्यूरो हेड एंड नेक बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, ये जो हिप के अराउंड जो सारी मसल्स और सारी चीजें, ये बार बार हर बार पूछते हैं, और इस बार भी आया, है ना। तो ये चीजें, और मैंने प्रीवियस ईयर से देख ली कौन कौन से, बस सिर्फ इतना ही पढ़ा एनाटॉमी में और कुछ नहीं पढ़ा, है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक्स देख लिए मैंने सर के, फिर पूरे वाले वीडियो से जो जो प्रीवियस ईयर में आए थे टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे थे, मैंने बताया हुआ था कि ये टॉपिक इतनी बार रिपीट हुआ, ये वाला इतना, ये एनालिसिस अच्छे से किया हुआ था। डू शेयर इट विद स्टूडेंट्स, ठीक है, आई विल डू दैट। तो दैट्स ऑल आई रेड फॉर एनाटॉमी। एंड मेरे को एक और चीज बताई गई थी, एनाटॉमी इतना वोलेटाइल है, दिस वाज इन सनिल्स इंटरव्यू, ही वाज करेंटली रेडियोलॉजी परस्यू कर रहे हैं, 30th रैंक थी इनकी जुलाई में, कि भाई एनाटॉमी इतना ज्यादा वोलेटाइल, आपने अगर नहीं रिवाइज किया लास्ट के 2-3 दिन में तो भूल जाएगा। तो मैं लास्ट 2 दिन पहले मैंने पूरा रिवाइज किया, तो पिछली रात भी रिवाइज किया था। जैसे कि आपका जो आर्चेज रेफरेंशियल आर्चेज में क्या कौन सा डेरिवेटिव आया था क्वेश्चन, कौन सी आर्टरी कहां से, ये तो रटने वाला है, कोई वो नहीं है, रटो भाई इसको, है। तो ये किया था रिवाइज, ठीक। सेकंड आ जाते हैं फिजियोलॉजी में।
फिजियोलॉजी में मैंने एलएमआरपी देखा था डॉक्टर आशीष का थ्रू ई गुरुकुल से, दैट्स ऑल। बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने, 14 मेरे को लगता है 12 या 14 घंटे में, या हो सकता है 10 घंटे में पूरा पढ़ाया। और उसको मैंने उनके नोट से उसको फिर अंडरलाइन भी कर लिया था, जो जो मेरे को रिवाइज करना है। तो बेसिकली जब मैं पढ़ता था, इसका ये मतलब नहीं होता मैं बस पढ़ा उसे, मैं ये देख लेता था मेरे को जब नेक्स्ट रिवीजन देना, मैंने किया था भाई मेरे पास 3.5 महीना बचा था, तो मैंने पहली रीडिंग मुझे देने में देनी है। उसके बाद मेरे को वापस से जो है वापस से जो पूरा मैंने 1.5 महीने पढ़ा है वो फिर से मेरे को 1 महीने में फिर से पढ़ना है। उसके बाद मैंने को 15 दिन देना है फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, और फिर जो मेरे पास बाकी बचा हुआ टाइम है वो मेरे को फिर से रिवीजन करना है। एंड उसके बाद भी फिर से एक लास्ट रिवीजन देना है लास्ट 7 डेज में, जिसमें मेरे को प्रीवियस ईयर मेरे मार्क क्वेश्चंस और जो मेरे जो 4 से 5 दिन का समय बचेगा और उसमें और मेरे को जितना कंसंट्रेट करना है वो मैं करूंगा। तो इसी हिसाब से तुमने अपना जो सब्जेक्ट तो मैं हर बार पढ़ता था, एक्सपैंड तो किया। ये मैं सोचता था कि अगली बार मैं पढ़ूंगा तो इसी चीज को मैं अगर मैं 10 घंटे में पढ़ रहा हूँ तो अगली बार 4 घंटे में इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ूंगा। ऑफकोर्स आप सब नहीं पढ़ पाओगे जब दूसरी रीडिंग दे रहे हो। तो फिजियोलॉजी में जैसे रेगुलेशंस हर बार इंपॉर्टेंट होता है, सीडीएस में आपका सीएनएस में सारी चीजें हो गई, जो जो प्रीवियस ईयर उसको मैंने स्टार मार्क कर दिया, जिससे मैं नेक्स्ट में वो अच्छे से और मतलब वो चीज तो पढ़ जाऊं अगर और सब छूट भी जाए। ठीक, इसके बाद आ जाइए बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री में मैंने जो है बेसिकली मैंने रैपिड रिवीजन देखा था प्रेप लैडर का, समवेयर अराउंड 7 आवर्स की डॉक्टर स्माइली का वीडियो देखा था 7 घंटे का, दैट्स ऑल। और इसके अलावा मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन उसमें कुछ चीजें थोड़ी सी कम कवर्ड है, जैसे कि जेनेटिक्स, एंजाइम्स, ये वाले क्वेश्चन मैंने फिर मैरो से उसके पूरे पूरे वीडियो देखे थे, वो करीब 4 से 5 घंटे का और होगा, है ना। तो खींचतान के 10 से 12 घंटे में ये मैंने पूरा। तो बेसिकली तुमने स्टैगर किया। हाँ, मतलब जो ब्रॉडली हमने डिस्कशन करा उसके हिसाब से सब्जेक्ट को किया। कोई भी सब्जेक्ट में दिस हाउ यू डिड द फर्स्ट ईयर। ओके, सेकंड ईयर है ना। और सारे सब्जेक्ट मैंने ऐसे किया, पहले आपका रैपिड रिवीजन या फिर कह लो एलएमआरपी कह लो, अलग अलग में अलग अलग है आपका प्रेप लैडर, मैरो और ई गुरुकुल से, जिस सब्जेक्ट में मेरे को सबसे अच्छा जो फैकल्टी लगा उसके थ्रू, प्लस उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टॉपिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो नहीं आ रहे थे मेरे को क्वेश्चन तो रट डाले, मतलब आंसर्स, है ना, मतलब उसमें मैंने कुछ नहीं। और इस बार आया भी क्वेश्चन, जैसे कि एक था कि भाई रोजुवा या एटोरवा 80 क्वेश्चन, मेरे को आंसर याद था कि इसका 80 आंसर मेरे को नहीं पता, कंसेप्ट रटो खत्म करो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे इसमें, बस मतलब जो पता था ये आंसर है प्रीवियस ईयर में आया, मेरे को नहीं पता इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। एंड ऑफ कोर्स जब आप 3 महीने में पढ़ रहे हो तो आपको यार आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ना कि कंसेप्ट बनाने के लिए, सिंपल तो रट के खत्म करो, है ना। और उसमें आपको जो लग रहा हो कि भाई इसको फिर से रटना पड़ेगा तो उसको स्टार मार्क कर दो क्वेश्चन। ठीक, अब सेकंड ईयर पे आ जाते हैं। सेकंड ईयर पे पैक एलएमआरपी डॉक्टर प्रवीण, दैट्स ऑल व्हाट आई डिड, है ना। इसके अलावा नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, हाँ कुछ भी नहीं किया। सर ने बोला था स्टेन्स पढ़ने हैं, मार खाता कुछ और करता तो पैथोलॉजी में स्टेन्स करते हैं, लेकिन फिर लास्ट में बस टाइम नहीं बचा था, होपफुली एक भी क्वेश्चन नहीं आया है वो लकी। हां स्टेन्स आ जाते हैं। हां मेरे स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि स्टेन्स का टॉपिक को मिस नहीं करना, और लास्ट में पढ़ना होता है लेकिन मैं कर नहीं पाया था, बस टाइम नहीं बचा था, ऑनेस्टली मैं बताऊं, आया भी नहीं, दैट वाज लक फैक्टर एज वेल। माइक्रो में मैंने जो है इसमें प्रेप लैडर का मैंने रैपिड रिवीजन देखा, प्लस कुछ कुछ जो टॉपिक्स प्रीवियस ईयर में आए, जैसे एक क्वेश्चन इस बार भी आया, ठीक है, 4 to 6 माइक्रोन ऑफ आपका सिस्ट, कुछ नहीं करना उसमें, क्रिप्टोस्पोरा के हर बार आता है वो, इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताता हूँ, मेरे थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में जो पेपर था उसमें भी आया हुआ था टॉक्सोप्लाज्मा और ये सब। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो प्रीवियस ईयर में आते थे और रैपिड रिवीजन में नहीं कवर थे प्रेप लैडर के, वो मैंने मैरो के पूरे वीडियो से की। जनरल माइक्रो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने फुल उससे वीडियो से ऑक्सीडेज पॉजिटिव कौन सा कैटलिस्ट पॉजिटिव, एंड आई बिलीव यार बेसिक चीजें तो आनी चाहिए, मतलब माइक्रो में भी आप अगर कर रहे हो, तो ये दैट्स है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो नहीं आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ में वो रट के खत्म, सिंपल, मतलब ये स्ट्रैटेजी होता है। फार्मा में गोविंद राय गर्ग सर के मैंने वीडियो किया, 7 घंटे का रैपिड रिवीजन था उनका, प्लस प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे, जैसे उसमें आप सेल वॉल का नहीं पढ़ाया था, मैकेनिज्म ऑफ कैसे सेल वॉल इनहिबिटर काम करता है, कि आपका वैंकोमाइसिन है हो गया आपका, और उसके बाद आपका बीटा बीटा जो हो गया आपका बीटा लैक्टम हो गया, वो कैसे काम करता है, क्रॉस लिंकिंग रोक रहा है। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर थे, सेम मतलब स्ट्रैटेजी, दैट्स ऑल, है ना। तो 6 घंटा पूरा फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में फाइनल सर फॉरेंसिक बचा है, फॉरेंसिक अब फॉरेंसिक सेकंड ईयर में नहीं रहा ना, अच्छा तो बाद में हो गया, पर चलो कोई बात नहीं, हम लोग के टाइम में सेकंड ईयर में और फॉरेंसिक में सिंपली मैंने मैरो का वो 5 घंटे के जो है वीडियोस थे, एंड एडिशन 5 प्लीज नोट, मैंने एडिशन 6 नहीं किया, तो मेरे को एडिशन 5 वाले सर में ज्यादा अच्छे लगे थे,
मेरे को नाम ऑनेस्टली भी नहीं याद आ रहा है सर का क्या था, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया था, स्पेसिफिक चीज बताई थी, वो बता देते हैं कि दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। और जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए फोरेंसिक मेडिसिन और डॉक्टर अखिलेश चंद्र, अब सर मेरे को नाम आई एम फॉरगेटिंग, बट वही 4 से 5 घंटे के वीडियोस थे। और फॉरेंसिक का ऐसा है, आपको उसको करना पड़ेगा वापस से, है ना। और यहाँ पर मैंने गलती भी की थी, मैं बता दूं आपको कि पता है मेरे को एक फोमो हो गया था सर यहाँ पर कि भाई मैंने सेक्शंस करे नहीं थे क्योंकि मेरे पास पहले टाइम नहीं था। और जो सेक्शंस होते हैं सारे 326 हो गया आपका, 354 आपका, 375, सारे सारे जो सेक्शन होते हैं। और मैंने प्रीवियस से जब क्वेश्चन पेपर लगाए थे 5 साल में मैंने एक दो क्वेश्चन भी नहीं देखे सेक्शन के, बट इतना अगर पढ़ाया हुआ था मेरे को लगा यार सेक्शन नहीं छोड़ सकते, इंटरेस्टिंगली क्वेश्चन भी नहीं आया। तो एम्स जो है ना वो ये नहीं एक्सपेक्ट करता है आप सब रट डालोगे, वो एक्सपेक्ट कंसेप्चुअल आपसे क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा। बट कुछ तो रट्टाफिकेशन कुछ कुछ है, वो प्रीवियस ईयर से देखो, वो प्रीवियस सिंपल है, मतलब उस पर आप फालतू अपना टाइम ना वेस्ट करो, है। तो फाइनल ईयर सर अब फाइनल ईयर में हम लोग बढ़ते हैं, तो ये आप सब्जेक्ट बोलते जाइए। मेडिसिन, मेडिसिन में मैंने 2 चीजें की हैं। पहला, ये मैंने अपने फाइनल ईयर एग्जाम के लिए भी किया था, और इतना ही मेरे लिए किया था मैंने स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फाइनल ईयर एग्जाम के लिए। दैट वाज डॉक्टर मारवा के प्रेप लैडर का रिपीट रिवीजन। इंटरेस्टिंगली जो उनका पिछला वाला रिपीट रिवीजन था वो अभी नया भी लॉन्च हुआ है, वो मेरे को प्रीवियस वाला ज्यादा अच्छा लगता है, शायद वो एडिशन 3 वाला, वो उसमें करीब 15 घंटे में पूरा पढ़ा है। अभी नए वाले में 30-40 घंटे का हो गया, जो कि काफी ज्यादा पढ़ा हुआ है ना। मेरे को लगता है उतना आप कर लो प्लस, लेकिन उसमें कुछ चीजें कमी है, मैं आपको बता दूं, जैसे कि एमआई नहीं पढ़ाया गया उसमें, हाइपरटेंशन वो नहीं पढ़ाया गया है, हाँ ये डायबिटीज नहीं कवर्ड है। ये कुछ और टॉपिक्स थे, ये मैंने डॉक्टर थमीम के एलएमआरपी से देखा, वो बहुत अच्छा पढ़ा है वो। तो मैंने जो रैपिड रिवीजन है पूरा उनका हो गया डॉक्टर मारवा का, प्लस बहुत अच्छा पढ़ा है डॉक्टर तमीम ने। कुछ मैंने तीन टॉपिक्स किए डॉक्टर तमीम के रैपिड रिवीजन, मैं एलएमआरपी से पूरा नहीं कर पाया था। पहला पूरा मैंने कार्डियो पढ़ा, दूसरा मैंने न्यूरो पढ़ा, तीसरा एंडोक्राइन। ये 3 सर ने भी बताए थे कि बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, और ये मैंने किए। दैट्स ऑल आई डिड फॉर मेडिसिन, इसके अलावा कुछ नहीं किया मैंने, प्लस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट डाले जो तो मुझे ये बताओ 3.5 महीने में कितनी देर पढ़ते थे, कितनी देर सोते थे, कितनी देर खेलते थे, तो बेसिकली कितनी देर यूट्यूब पर? सर बेसिकली मेरा जो शेड्यूल रहता था, यूजुअली लोगों का 24 आवर्स स्लीप साइकिल रहती है नॉर्मली, कि भाई अगर आप 8 बजे आज सुबह उठ रहे हो तो अगले दिन भी आप 8 बजे। मेरा क्या 26 आवर्स मैंने स्लीप साइकिल रखी यहाँ पर। एंड यहाँ पर आप लोग ये क्वेश्चन सोच रहे हो कि भाई मेरे इंटर्नशिप था तो कैसे मैं इसको मैनेज कर पाया। पहली चीज तो एम्स में इंटर्नशिप थोड़ी सी रिलैक्स रहती है, जहाँ पर स्ट्रेसफुल पीरियड रहता है वो विलेज का, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया मेरा विलेज जो है जुलाई के एंड में खत्म हो, तो उसके बाद मेरी काफी रिलैक्स पोस्टिंग्स थी। और आई एम वेरी थैंकफुल टू माय सीनियर्स आल्सो, जैसे मैं अगर इंटर्नशिप में जा रहा हूँ तो डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में बैठ के भी मैं पढ़ ले रहा हूँ, तो मैं पढ़ता रहता था बेसिकली, है ना। तो अब मैं आपको अपना ये बता रहा हूँ टाइम टेबल कैसे होता था मोटा मोटा खींचतान के, अपार्ट फ्रॉम देखिए थोड़ा बहुत टाइम इंटर्नशिप में जाता था, प्लस पूरे टाइम खींचतान के बाकी टाइम पढ़ता। क्या मैं कर रहा होता था, 26 आवर्स की मेरी स्लीप साइकिल होती थी, जहां पर मैं हर अगले दिन 2 घंटा लेट जो है वो मैं सो रहा होता था, एंड 2 घंटा लेट जग रहा होता था। इसमें 26 आवर्स कितनी देर सोते थे? इट वाज 5.5 आवर्स एंड खींचतान के 6 आवर्स मतलब कहना इससे कि तुम्हारी एज में 6 घंटे की स्लीप इज अ डिसेंट स्लीप। आई बिलीव यस, ऑल्दो आई जस्ट रिटेरिएट टू दिस फैक्ट, पूरे में यूजी 8-9 घंटा सोया हूँ, है ना। एमबीबीएस की प्रिपरेशन में मैं उस वक्त भी 5.5 घंटा पढ़ता था, और यहाँ पर फिर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ गया तो मैं आ गया। तो बच्चों मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर एग्जाम क्रैक करना है तो एक ही काम करना है, eat sleep read repeat, eat sleep read repeat. I'm once again reiterating it, eat sleep read repeat. There should not be anything else in your life. खाना है, सोना है, पढ़ना है, बस। तो अगर इतना डेडिकेट होकर पढ़ सकते हो तो भूल जाओ whatever you have scored. If you are devastated, if you are disorient or not happy with your rank, you can still do it in the time that is available. But पढ़ना आपको ही पड़ेगा, आपकी जगह कोई और नहीं पढ़ सकता, वो हार्डवर्क आपको ही करना पड़ेगा. The biggest reason of doing this is to tell you that yes, it is possible to crack the exam with a decent rank. With a decent rank, let's not go into those in a pseudo world of going कि चलो यार 3 महीने जाएगा और अभी रैंक टॉप 10 में रैंक आ जाएगी. ऐसे नहीं होता बच्चे.
Let's be very, very practical. One second, in this world, you have to create, or you have to identify what are the things that are good for you. We all as a teacher try our level best to give you the best possible content, but everybody has a different way of understanding it. If you like us, join us. If you don't like us, identify what you like, but just stick to those places, like what he did. Identified anatomy, identified physiology, identified biochemistry, identified ENT, identified, just identify. And if you are unable to do all this, follow one place and follow it completely. Do not sacrifice the previous topic for anything. Please do not sacrifice it. Okay. For those who are with me at BBMCI, I can tell you that if you have not studied anything, Power Course is being launched at majority of the places for you. We have an online Power Course. We have to the point book for the previous year MCQs. They will be real boon. But is it the only source? No. There are plenty of such resources which are available in the system nowadays. Wherever, whichever you are comfortable with, stick to a place. Do not go into the negative thought process. Do not go into the thought block that you will not be able to do it. For me, the biggest success is that if you are able to reach to the best of your potential. With me, without me, does not matter. What matters is, are you able to reach to the best of your potential? Okay. So that's all for the day. Thank you very much, Aman, for sparing your time. And I wish all of you a best of luck. Congratulations to all those who have got great rank. Right. Those who have got rank between 800 to 2000, 3000, they're sending me message, sir, will we get a branch? Will we get a seat? Getting this rank is a testimony to the fact that you are doing very, very well. Don't break the cycle. Please keep working hard and you're gonna get a great rank in the NEET exam. If you have not scored it, it's a mirror. You can work hard and you can still get a great rank. सर मैं तो सिंपल बोलता हूँ कि अगर आप मैं 3 महीने में 3.5 महीने में ला सकता हूँ 500 के अंदर है भाई आप लोग में से ज्यादातर लोग 1 साल 1.5 साल 2 साल 6 महीना 7 महीना मेरे से ज्यादा पढ़ो मेरे से ज्यादा पोटेंशियल आप ला सकते हो ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा दिमाग है इट इज स्पेसिफिकली कि भाई ये इसमें कोई वो ये फिजिक्स और मैथ्स नहीं है हार्ड वर्क कैन कंपनसेट फॉर इंटेलिजेंस खत्म काम सिंपल है याद कर लो नहीं आ रहा है समझ लो उसको और आपको वहां पर उगल के और मोर ओवर एक और भी बात है मैं तो मानता हूँ हालांकि मैं मानता नहीं इस बात को कि दिमाग कम और ज्यादा होता है फोकस कम और ज्यादा होता है बट मैं कहता हूँ कम है अब वो मॉडिफाई तो हो नहीं सकता ना अब तो वो जितना है उतना ही है ना बट एक चीज है जो मॉडिफाई हो सकती है और वो आपका हार्ट So I also wish you all the very best for take care guys NEET PG examination 2023 and फोड़ के आओ यार आप लोग I wish you all the best and do let me know if we can do anything for you okay take care guys